Good morning, everybody. Good morning, Rutika. Good morning, Manisha. Good morning, Rutika. Good morning, Manisha. Good morning, students. So there is some technical issue you need to face. Anyway, can you hear me? Please let me know. Can you hear me? Please let me know. Can you hear me, students? Please let me know. Good morning, Swati. Good morning, everyone. Please let me know. Can you hear me? Very good. Very good. Good morning, Shraddha. Good morning, Rinku. Okay. So, yes, so you're ready. Good morning, Manjari. Yes, today's lecture will cover every topic. आज का जो टॉपिक है वेन डायग्राम, दिस विल कवर द टॉपिक्स ऑफ गेट. तो क्या करने जा रहा हूं, दिस विल बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल लेक्चर स्टूडेंट्स, क्योंकि वी आर गोना कवर एवरीथिंग हियर फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ कंसेप्ट्स. वी डू नो कि हर एग्जाम पे हर टाइप का क्वेश्चंस नहीं आते, राइट? बट this topic Venn diagram, this is so important that I have planned that I will teach you this thing Venn diagram. ऐसे पढ़ाऊंगा मैं आपको कि हर एक टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो आपको आ जाएगा. So I'll cover every single thing. I'll cover every single thing. जुड़े रहिए हमारे साथ. Good morning everybody. So I'll cover every single thing from the conceptual part to question solving part. I'll cover every single thing. So anyway students, so you see, तो एप्टीट्यूड के चैनल पे जो लाइव हो रहा है आज, उसके द टॉपिक, दिस विल बी द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस वीक, राइट? तो पहले हम स्टार्ट किए थे वर्ड एनालॉजी से. यस्टरडे वी हैव स्टडीड अबाउट नंबर एनालॉजी, द नंबर एनालॉजी पर्सपेक्टिव एग्जाम के बेस के ऊपर बेस करके. नाउ टुडे वी आर गोना स्टडी वेन डायग्राम. और सीएसआई, नेट, गेट, सेट, कोई भी एग्जाम पे Venn diagram, not only that, any kind of examination, not only for research purpose, any kind of aptitude portion in any kind of examination, वहां पे जो Venn diagram का क्वेश्चंस आते हैं, आज पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर करने जा रहा हूं आपको. ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चंस है. देखिए, व्हाट इज Venn diagram students? So are we ready for the lecture? Please type in the comment section. Are we ready for the lecture? Are we ready for the lecture? Please type in the comment section. Let me know your presence. Then we can start. Let me know your presence. Then we can start, students. So देखिए, first, thank you Shraddha, thank you Shweta, Swati. Great. We are ready, right? So what is Venn diagram? So Venn diagrams are diagrammatic representation of sets using geometrical figures like circles, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, एटसेट्रा. तो क्या है स्टूडेंट, देखिए वेन डायग्राम क्या है. रियल लाइफ पे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होता है, उन चीजों को एड्रेस करने के लिए व्हाट वी डू स्टूडेंट्स, वी यूज पिक्टोरियल आइडिया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वी यूज पिक्टोरियल आइडियाज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. तो वही हम करते हैं वेन डायग्राम से. कैसे? सोचिए कि इस सिटी में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस जितना है, आई एम रिप्रेजेंटिंग देम विथ दिस सर्कल. so this is corona positive live cases. Right now, the number of cases in this city, yes, Swati is saying pictorial representation of showing relationship to each other. Very good. So you see students, यानी के we are talking about a practical problem. Suppose इस city पे this circle represent the coronavirus positive, corona positive patients, the live cases. That means the patients who are corona positive right now. ठीक है ना? और एक करता हूं मैं
Suppose this is representing, this one is representing a particular hospital. This representing the patient in a particular hospital. So this one is a patient in a particular hospital. तो इसका जो है स्टूडेंट्स देखिए, इसका वेन डायग्राम का जो पिक्चर्स आएगा ऐसे आएगा. क्यों? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू स्टूडेंट्स. देखिए वो येलो सर्कल जो है इसका मीनिंग है कि वो हॉस्पिटल पे कितना पेशेंट्स एडमिटेड है. द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स admitted in that particular hospital, we are representing it with this yellow circle. Okay, and what about the coronavirus positive patient? देखिए उनमें से कुछ पेशेंट्स होगा जो इस हॉस्पिटल में एडमिटेड है. उनमें से कुछ पेशेंट्स होगा जो उन हॉस्पिटल में एडमिटेड है, लेकिन बहुत सारा पेशेंट यहाँ पे होगा दिस पोर्शन पे स्टूडेंट. यहाँ पे बहुत सारा पेशेंट होगा जो क्या है उस हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं है या फिर वो होम ट्रीटमेंट पे है. मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, दिस पोर्शन पे जो पेशेंट्स है वो इस हॉस्पिटल में नहीं है क्योंकि येलो सर्कल के बाहर है वो पोर्शन. और येलो सर्कल का मतलब क्या है स्टूडेंट? येलो सर्कल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इन दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल. उसमें से देखिए यहाँ पे जो पोर्शन होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो पोर्शन होगा इस पोर्शन पे क्या है, वो पेशेंट है स्टूडेंट जिनको कोरोना वायरस से अफेक्टेड नहीं है. मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस पोर्शन में ऐसा पेशेंट्स है जो उन हॉस्पिटल में एडमिटेड है लेकिन दैट पर्सन इज नॉट कोरोना वायरस पॉजिटिव. आई होप यू गॉट दिस आइडिया. So this is a practical scenario which we have represented using the geometrical figures like circle. वैसे ही ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इन सब चीजों को यूज करके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. आई होप यू गॉट दिस आइडिया एंड इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट, वॉट एवर द पिक्चर इज शोइंग, इज दैट रिलेटेबल विद द सिनेरियो व्हिच आई हैव डिस्क्राइब? जो सिचुएशन मैं बोला उससे इस पिक्चर का कोई संबंध आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. What about this? Last comment is from Swati. So I'm expecting comment. I hope you got this idea. So yes. So let's go to the next slide. You see students, जो questions आता है, I have divided. Yes, Shraddha. Yes, Swati. Fantastic. So I have divided all the problems in 3 main parts. Okay. तो जो टाइप 1 प्रॉब्लम्स होता है स्टूडेंट्स, थैंक यू रुतिका, थैंक यू सानिया. ओके, तो यू सी स्टूडेंट्स, जो टाइप 1 प्रॉब्लम होता है वो होता है इस तरह का. रेशमी सेइंग रिपीट. ओके रेशमी, दैट्स व्हाई फैंटास्टिक. प्लीज कमेंट such that we can describe the thing which is needed. Okay, that's why we need communication. तो देखिए क्या है, यहाँ पे एक सिचुएशन है. सिचुएशन क्या है स्टूडेंट्स? दिस सर्कल, दिस ब्लैक सर्कल रिप्रेजेंट द कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट इन दैट पर्टिकुलर सिटी. ओके, एंड दिस हॉस्पिटल is a particular hospital of this city. We do know that in a hospital there are so many patients. Okay, out of them few will be coronavirus patient. So you see the total number of coronavirus patients, it has a common part with this yellow circle. It has a common part here with this yellow circle. And why so? Because some of the corona patients will get admitted in that particular hospital. Not only that student, you see many of the coronavirus patients are out of this yellow circle. उसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मतलब वही है कि वो जो पेशेंट्स है वो तो कोरोना वायरस से पॉजिटिव है लेकिन इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे जो रेड पोर्शंस आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे वो पेशेंट्स है रश्मि, जो पेशेंट तो है और इस हॉस्पिटल में एडमिटेड भी है लेकिन कोरोना वायरस से अफेक्टेड नहीं है. इसीलिए देखिए कोरोना वायरस का जो सर्कल है उसका बाहर पे है वो सेक्शन.
I hope you got this idea. Good morning, Priyanka. Welcome in our class. So, more you will go through these things, it will be more clear to you. Okay, Rashmi? I hope you got it. Please write in the comment section, you got it or not. Please write it in the comment section. You got it or not? Rashmi Kulkarni, thank you so much. Now, let's go to the next page. You see, this is type 1 kind of thing. What I will show you here, you see 3 circles are there. तीनों circles जो है, इनमें से one of the circle is blue. इनमें से one of the circle is blue and one of the circle is yellow, right? And another color is there, which is B. So I have represent these things with 3 names. Now you see, say name of this portion, you see name of this blue is A. So let me write here, this is A, this one. Okay. Now this one is basically B. Right, student? And this one, the yellow one, it is basically C. Yes? Great. Now, what I will do, student? Say this is small a. Small a is represented by the total number of people here in this particular portion. Okay, students? Similarly, here I am writing B, which is the number of people who are residing here. Okay? Okay, students, just write in the comment section. Is that clear to you? आप देख सकते हो पूरा pictures को. मेरे पीछे वाला जो slide है, is that clear to you? Please write in the comment section. Is that clear to you? Please write in the comment section. Is that clear to you? Okay, so देखिए, this portion is B. Similarly, this portion is C. I'm just writing, say this portion is D, E, F, and G. Okay, so yes, it's visible. Thank you so much. So you see, I've written A, B, C, D, E, F, G. In particular section, I have mentioned little names such that I can explain you better, in a better manner. Okay? So student, if I write down the things properly, what is the meaning of this A? इस A का meaning क्या है? A का मतलब है, we are thinking about this portion. Let me draw. I hope this is clear to you. The meaning of A is this portion. What is meaning of A? Please write in the comment section. The A जो बोल रहा हूं मैं A, what does it mean? I am talking about which people. If this is a scenario, every set contains people, तो इसका मतलब क्या है this A portion का? पता है आपको students? Can you please tell me? What is the meaning of A? Anybody? See, A is basically those people who are in only A. जो only A पे है, they are this small a. We are representing small a by the number of people who are only in A. That means total number of people. Very good. So A reside in a region. So A reside in a region, of course, but not only that, this is only a region. मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो A में भी है, B में भी है, और यहाँ पे वो नहीं है जो A में भी है, C में भी है, या फिर यहाँ पे वो नहीं है जो A, B और C तीनों में ही है. Okay? So A means only A. Like this, I am representing every portion. If you have a notebook, please write it down. This is a very important picture which will help you to solve many problems very easily. Okay? So now, what about this B? If I'll represent this B is nothing but this portion.
What does it mean? B का मतलब क्या है स्टूडेंट? B का मतलब है, मंजरी saying सर रिपीट प्लीज, नो इशू। मंजरी देखिए, अगर आप बी को समझ में आएगा आपको, इफ यू विल अंडरस्टैंड अबाउट स्मॉल बी, यू विल अंडरस्टैंड स्मॉल ए ऑल्सो। सो आई एम टेलिंग अबाउट स्मॉल बी। देखिए बी का मतलब क्या है, दिस पोर्शन आई हैव वर्क, यहां पे स्मॉल बी आई हैव मेंशन दिस पोर्शन एज स्मॉल बी, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, स्मॉल बी पोर्शन में कौन है, एज स्वाति सेड ओनली बी। स्मॉल बी में कौन है, लेट मी यूज अ डार्क इंक, स्मॉल बी में कौन है, ओनली बी पीपल। ओनली बी का मतलब क्या है, जो बी में है मंजरी। सी व्हाट वी आर डूइंग, वेन डायग्राम से हम तीनों सेट्स लेते हैं और उनके बीच में एक संबंध निकालने का कोशिश करते हैं। द फर्स्ट थिंग आई हैव डिस्क्राइब्ड, इफ यू सी इट, दैट वाज अबाउट पेशेंट्स, और पेशेंट को हम कैसे उनको पिक्चरों से हम मेंशन किए, राइट। सिमिलरली शायद एक ऐसा सिचुएशन है, थिंक अबाउट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। एक स्कूल है, स्टूडेंट्स, स्कूल में स्टूडेंट्स रहता है, से ग्रेड 11 का, क्लास 11 का कुछ स्टूडेंट्स है, उनमें से मैथ्स लेकर जो पढ़ रहा है, दे आर डिसाइडिंग हियर। सोचिए कि इस पोर्शन में जो है वो मैथ्स का स्टूडेंट है, मतलब उसका मैथ्स एक सब्जेक्ट है। इस पोर्शन में जो स्टूडेंट है बी पे, से हिस्ट्री इज वन ऑफ हिज सब्जेक्ट, ठीक है, बी पोर्शन पे। और सी पोर्शन पे जो स्टूडेंट है, बायोलॉजी इज वन ऑफ हिज सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ए पोर्शन में मैथ्स वाले हैं, बी पोर्शन में है हिस्ट्री वाले, और सी पोर्शन में है बायोलॉजी वाले। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्मॉल पोर्शन, मंजरी एंड एवरी अदर स्टूडेंट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्मॉल पोर्शन, दैट मीन स्मॉल ए, उसका मतलब है जिनको सिर्फ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और बायोसाइंस उसने बायोलॉजी उसने नहीं लिए है, राइट। आई होप यू गॉट इट। He took only mathematics, nor biology, and not biology and nor history. I hope you got it. Similarly, small b जो मैंने बोला, only b, उसका मतलब है जो केमिस्ट्री लिए है, सॉरी जो हिस्ट्री लिए है, लेकिन उसके पास मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी एक सब्जेक्ट नहीं है। The p students who were taking only history, not biology nor mathematics. I hope now it is clear to you, Manjari. Please let us know in the comment section. Then I can move to the other portions. So, students, we know about small a, we know about small b. Thank you, Rinku. Please let us know, Manjari, is that clear to you? So, what about the small c? Please let me know about the small c. What do you mean by the small c? What do you mean by these small c, students? Please let me know. Very good, Manjari. What do you mean by small c? Please let me know. What do you mean by these small c? Please let me know. अगर इस पिक्चर का समझ आपको आ जाएगा, दिस इज द बेसिक ऑफ होल चैप्टर। वेन डायग्राम का जितना क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ओनली सी। फैंटास्टिक। तो सी का मतलब हो गया, स्मॉल सी का मतलब हो गया ओनली सी। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी वी हैव सॉर्टेड, ओनली बायोलॉजी। फैंटास्टिक, रिंकू। तो नाउ व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, दिस डी? What about this D? Very good. Students belongs to only biology. Fantastic. What about this small d? I'm writing this somewhere. What about this small d? What do you mean by small d, students? Both A and C.
फिर से बोलिए, सोचिए जरा, डी बोथ ए एंड सी, लेकिन इस पोर्शन में जो है वो भी ए एंड सी में है। जी के जो पोर्शन है, द पोर्शन विच कंटेन स्मॉल जी, वहां पे भी जो स्टूडेंट्स है उसका भी मैथ और बायो है। मैथ एज वेल एज बायोलॉजी इज ए गुड थिंग, बट a student see what I am telling you, D is only this portion. स्टूडेंट्स विथ मैथ एंड बायोलॉजी, लेकिन देखिए जी वाला पोर्शन पे जो है उसका भी मैथ और बायोलॉजी है। स्टूडेंट्स विथ मैथ विथ बायोलॉजी और मैथ एज वेल एज बायोलॉजी। और एक थोड़ा सा पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हो, प्लीज टेल मी वो पॉइंट क्या है, कोई बताइए मुझे, व्हाट विल बी दैट पॉइंट, दैट डी का मतलब क्या है, स्मॉल डी वाले पोर्शंस पे कौन है? D is only math. No, Rutika, D is not only math. You see, D is common in these capital A. वो आपका जो ब्लू सर्कल है इसमें है, और आपका जो येलो सर्कल है उसमें भी है। मतलब मैथ और बायो में तो है ही। मतलब जो लोग बोल रहे हो कि मैथ एंड बायो है, वेरी गुड स्वाति। स्वाति gave the right answer. स्वाति फैंटास्टिक, बोथ ए एंड सी विदाउट हिस्ट्री। जिसके पास बायो और मैथ तो है लेकिन उसका सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं है। नॉट ओनली मैथमेटिक्स बायोलॉजी मंजरी, यू सी जी वाले पोर्शन में भी जो बच्चे हैं उसके पास भी मैथ बायो और हिस्ट्री तीनों है। उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट उन बच्चों के बारे में जिसके पास मैथ एंड बायो तो है लेकिन हिस्ट्री नहीं है। दैट यू नीड टू मेंशन। सो व्हाट यू नीड टू राइट, ओनली बी इन बी, only in A and C, only in A and C। मतलब जो A में भी है और C में भी है उसके पहले ओनली बताइए। ओनली, व्हाई ओनली? क्योंकि वो हिस्ट्री में नहीं है। आई होप यू गॉट इट। चलते हैं दूसरे पोर्शन पे। दिस पोर्शन इज दिस, F। What about this F? What about the small f? Let me know about the small f। बताइए मुझे कि स्मॉल f का क्या होगा, स्मॉल f का क्या होगा, बताइए मुझे स्मॉल f का मीनिंग क्या है। What do you mean by small f? स्मॉल f वाला पोर्शन जो है, मतलब I have marked with the green ink, उसमें कौन है बताइए, स्मॉल एफ में कौन है? रिंकू इज सेइंग ओनली बायोलॉजी एंड हिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। फैंटास्टिक रिंकू। सो रिंकू's आंसर इज परफेक्ट। देखिए जो बी एंड सी में है मतलब हिस्ट्री और बायोलॉजी में है लेकिन उसके पास मैथमेटिक्स नहीं है, तो क्या होगा? सो दिस ऑप्शन व्हिच इज एफ, लेट मी यूज अ डार्कर इंक, दिस एफ, F का मतलब है ओनली इन दोज हु आर ओनली इन बी एंड सी। जो बायोलॉजी एंड हिस्ट्री में तो है लेकिन मैथ उसके पास नहीं है। राइट, वेरी गुड मंजरी। लेट्स थिंक अबाउट E नाउ। व्हाट डू यू मीन बाय दिस पोर्शन व्हिच इज E? What do you mean by this portion which is E, student? बताइए कि E का मतलब क्या है? What do you mean by small e? Small e का मतलब क्या है students? I expect answer from everybody. बताइए small e का आंसर क्या है? What do you mean by small e? Let me see, is that clear to you or not? बताइए स्मॉल ई का क्या है? मैथ एंड हिस्ट्री विदाउट बायोलॉजी। ई इन ए एंड बी बट नॉट इन सी। फैंटास्टिक। उसका मतलब क्या हो गया? मतलब जो ई पे है, जो दोज पीपल हु आर रिसाइडिंग
At E, they're in only in A and B, only in A and B, मतलब है कि वो A and B में है लेकिन C में नहीं है. So we got this idea. Thank you for your comments. Only maths and history, but no biology. Fantastic. So the last portion is there for you students, and that portion is G. That portion is G. Let me mark it with a red color. So what about this portion? What about this portion in the middle? The red portion in the middle, what do you think about this portion? इस portion का meaning क्या है students बताइए, and please share this with your friends. हर एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए जल्दी. If some of your friends will come, that will be fantastic. Please share कीजिए हर एक प्लेटफॉर्म पे. So G is in A and B and C each. Very good. देखिए, if we will get more responses from you, we'll continue such things. We'll give you knowledge like this. Math, history and biology, thank you. You got the correct answer. Everybody is getting the correct answer. So G में जो है students, they are the people who have maths, bio and history all. So G is the portion which is there all the three in A, B and C. मतलब स्टूडेंट जो A में है, B में है एंड C में भी है, जो A में है, B में है एंड C में भी है. I hope you got it. So this is the idea of the whole picture. We have denoted, not only me, we have collectively denoted which portion means what. If we know about the section differently, अगर हमको हर एक पोजीशन के बारे में सही से जानकारी होगा तो कोई भी क्वेश्चंस गलत हम कर ही नहीं सकते. दिस इज वेरी इजी. चलते हैं इसका एक एग्जांपल पे. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. आपने जो whatever you have learned in the previous topic टाइप 1 के बारे में जो whatever you have learned, इसमें आपको बताना पड़ेगा उनमें से what will be the answer. Read this question everybody. Read this question everybody and tell me that what will be the answer. Read this question everybody and let us know what will be the answer. In a junior college with 500 students, 250 students study mathematics and 200 students study biology. 100 students study neither mathematics nor biology. How many students study both mathematics and biology? तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा students? You need to draw a picture. You need to draw a picture. You need to get that sense how to draw the picture by these ideas, whatever was there in that particular question. जो भी questions है उसमें से कैसे आप picture draw कर सकते हो. तो देखिए total number of students is 500. Out of these 250 students are from mathematics, 200 students are from biology and 100 students study neither mathematics nor biology. So how many students study both mathematics and biology? बताइए. Okay, thank you. तो मेंशन कीजिए. अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मेंशन कीजिए मुझे. I hope you can see it now. Option Swati got A. Fantastic. Let us see how many of you can get the answer. Swati got A. What about others?
What about other options, students? बताइए. Swati got A. What about Manjari got 250? Manjari got 250. So that's why I need your answer to run this analysis कि कौन सी answers आ रहा है. What are the answers you are getting that I need to know? So Rutika is getting A. Okay, so we got 2 A's and 1 A. So बहुत सारा A आ रहा है. So Manjari, you please check your method, although we'll discuss this anyway. So you see, everybody is getting A. We can assume A is correct, but how we should solve this? देखिए, I am explaining this to you. Please focus कीजिए, it will help you. So the thing is that students, in a junior college, 500 students are there. 500 students है एक कॉलेज पे, राइट? तो पहले हम क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट होते क्या है? यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट द टोटल थिंग. मतलब एक क्लास में अगर आप एनालिसिस कर रहे हो कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन बच्चा है, तो टोटल क्लास का जो स्टूडेंट्स है दैट विल बी द यूनिवर्सल सेट. ठीक है स्टूडेंट्स? Swati, sorry sir, I have solved it by probability method. No issue, that is fantastic. Probability में आप जो cardinality का यूज करते हो वही तो है बेसिक आइडिया, राइट? तो आप कोई भी कीजिए, बट दैट थिंग लेट मी एक्सप्लेन यू. तो वेन डायग्राम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, यूनिवर्सल सेट, दिस इज द यूनिवर्सल सेट. उसमें से 500 स्टूडेंट्स क्या है टोटल सेट का, मतलब इस यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट्स है दैट विल बी 500. उसमें से 250 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स. तो इनमें से दिस इज फॉर मैथ्स. दिस इज फॉर मैथ्स. मैथ्स में कितना स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स? 250. 250 students are there in maths and 200 students study biology. तो कहां पे होना चाहिए बायो? देखिए, बायो शुड बी हियर समवेयर. एंड उसमें से क्या होगा, मैथ के साथ एक कॉमन पोर्शन भी रहेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी. मतलब ए वाला सिचुएशन आ सकता है स्टूडेंट जहां पे कॉमन सेक्शन हो सकता है. तो यू शुड थिंक अबाउट दिस. बायो में कितना है? 200 स्टूडेंट्स. अब क्या है, 100 स्टूडेंट्स स्टडी नीदर मैथमेटिक्स नॉर बायोलॉजी. दैट मींस यहां पे स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स है. कहां पे? ये वाला जो रीजन है, मतलब मैथ्स और बायो को छोड़कर उस क्लास पे या फिर उस कॉलेज पे जितने स्टूडेंट्स है मैथ्स और बायो को छोड़कर, जो अलग सा कुछ है, अलग कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ रहा है, दे आर देयर 100 people. So this is the Venn diagram of the whole thing. अब देखिए कितना इजी तरीका से we can answer this thing. ठीक है? So let me see we have place in the next position or not. Okay, no issue. So the thing is that student, first I'll show you 50. Very good. First I'll show you one method, then I'll show you another method. Why I choose this question and why I'll show you like that? Because it will clear your concept. So first thing I'll show you student, that will be very easy. देखिए, मैथ्स में कितना है 250 और बायो में कितना है 200. ओके, तो
Okay. So just tell me for 1 second, students, can you hear me properly? आपको आवाज आ रहा है? Please let me know the sound is coming or not. Are you getting the noise? Are you getting the noise? Please below, please let me know about the sound. Here we can start. Yes, thank you. So the thing is that देखिए यहां पे मैथ प्लस बायो में कितना है? मैथ पे है 250 और बायो पे है 200. तो 250 प्लस 200 which is 450. So how many ways I will show you two methods. I will show you, students, two methods. ठीक है? The first method I am talking about the type 1 method. क्यों बोल रहा हूं two methods आपको? Conception clear करने के लिए. Not only this problem, these concepts will help you throughout all the questions of Venn diagram. ठीक है? तो देखिए मैथ प्लस बायो का जो टोटल स्टूडेंट्स है that is 250. 250 plus 200, that is 450. Okay, now the total amount of student here is student here is 500. Okay, the total amount of student is 500. So rest means मतलब देखिए 450 स्टूडेंट्स अगर मैथ और बायो से होगा तो बाहर वाला जो स्टूडेंट्स है मतलब रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो कहां से होगा? दो स्टूडेंट्स विल बी फ्रॉम नॉट बायो एंड नॉट मैथ. सो 500 वाज द टोटल नंबर माइनस 450 क्या हो रहा है? 50 स्टूडेंट्स. तो देखिए हमको मैथ और बायो को कितना मिला था? 450 स्टूडेंट्स. अगर उसको हम टोटल नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 स्टूडेंट्स. लेकिन यहां पे क्या है? 100 स्टूडेंट स्टडी नीदर मैथमेटिक्स नॉर बायोलॉजी. अर्थात मैथ और बायो को मिलाकर जितना स्टूडेंट्स होगा उसको अगर हम पूरा जो चीज है द टोटल नंबर उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आना चाहिए. लेकिन क्या आ रहा है? 50. दिस मेथड यू विल नॉट गेट एनीवेयर. ये वाला मेथड किसी भी जगह पे अवेलेबल नहीं है. दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड टू डू मैथ डिफरेंटली. कैसे करते हैं? तो क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था 100. क्यों? मैथ और बायो में जो नहीं है वो कितना है? 100 है. लेकिन कितना आ रहा है? 50. क्यों? क्योंकि गलती से हमको 50 मिला है. गलती कहां पे हुई है? देखिए गलती से मैथ्स को करेक्ट आंसर भी आपको मिल सकता है. क्यों? देखिए ये वाला जो पोर्शन है हमने जब काउंट किया है मैथ प्लस बायो दैट मींस 250 और 200 के हम जो ऐड किया है तब क्या हुआ? पहले बार हम मैथ को पकड़े, दूसरे बार बायो को पकड़े. तो क्या हुआ? बीच वाला जो भैया है, बीच वाला जो पोर्शन है, बीच वाला जो पोर्शन है वो पहले तो जब मैथ्स को काउंट किया तब एक बार लिए हम और दूसरे बार जब बायो को काउंट किया तब एक बार लिए हम. और बीच वाला जो रेड पोर्शन है वो क्या है? कुछ भी नहीं. बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी वाला बच्चे हैं, बोथ वाला बच्चे हैं जो मैथ्स में भी है स्टूडेंट्स और बायो में भी है. मैथ्स में भी है और बायो में भी है. वो बीच वाले बच्चे हैं उनको हमने 2 बार काउंट कर चुके हैं. 2 बार काउंट करने से स्टूडेंट क्या आया है? वैल्यू आया है 450. और उसमें क्या हुआ? 50 का घाटा हुआ. 100 होना चाहिए था. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हो गया 50. मतलब कितना स्टूडेंट्स हम ज्यादा काउंट किया? यहाँ पे प्लस 50 स्टूडेंट्स ज्यादा काउंट किए हैं हम. क्यों? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 500 और मैथ और बायो के बाहर है 100 स्टूडेंट्स. मतलब 500 इज द टोटल नंबर. मैथ और बायो के बाहर है 100 स्टूडेंट्स और मैथ और बायो में कितना होगा? 400 होना चाहिए. मैथ और बायो को मिलाकर कितना होना चाहिए? 400 होना चाहिए. लेकिन when we are counting 250 plus 200 we are getting 450. कितने ज्यादा मिल रहा है? 50 ज्यादा मिल रहा है. तो 50 क्या है? बीच वाला पोर्शंस वाले बच्चे.
50 क्या है, बीच वाले पोर्शंस पे जो है, क्यों, क्योंकि उसको हमने 2 बार काउंट किया है, 2 बार काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। ओके, 2 बार काउंट करने से ज्यादा आ जाएगा, कितने ज्यादा आ जाएगा, 50 ज्यादा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमने 2 बार काउंट किया, तो आंसर विल बी ए। नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस रीजनिंग। दिस इज द रीजन जो आपको लिखने का भी जरूरत नहीं होगा, आप देखकर ही आंसर कर सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस रीजन, फिर से मैं बोल रहा हूं, देखिए, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 500, मैथ और बायो में जो नहीं है वो है 100, 500 माइनस 100 हो गया 400, ये होना चाहिए था कब, मैथ और बायो को ऐड करके, लेकिन मैथ और बायो के अगर हम ऐड करेंगे कितना होगा, 450 होगा, क्यों 50 ज्यादा होगा, क्योंकि बीच वाले जो पोर्शन है उसको हमने 2 बार काउंट किया, बीच वाले जो पोर्शन है उसको हमने 2 बार काउंट किया, तो कितने ज्यादा आ रहा है, 50 is coming more, so that 50 must be the number of students who are common in maths and bio. You got it or not? Please tell me in the comment section. Swati said that you got it. What about others? Tell me, is that clear to you or not? इसके लिए लिखने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वेन डायग्राम काफी है, वेन डायग्राम देखकर ही आप आंसर कर सकते हो। 500 माइनस 100 हो गया 400, लेकिन 200 प्लस 250 हो गया 450, कितना है ज्यादा, 50 है ज्यादा, क्यों है ज्यादा, बीच वाला पोर्शन 2 बार आ रहा है, आंसर क्या होगा, 50 होगा। बताइए कमेंट पे, कमेंट पे बताइए प्लीज। दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रद्धा, स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट पे बताइए यू गॉट इट और नॉट। एक ऐसा आइडिया है, वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड श्रद्धा, दिस इज क्वाइट डिफरेंट, आई डू नो। नाउ आई विल शो यू अनदर टाइप, उसको क्या कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई विल टेल यू, Swati is saying clear sir, fantastic, so please write down in the comment section. In the meantime I'm erasing this portion, or better okay, okay, so that was the first thing students. So now let's go to the second picture. Second picture क्या है, this is another method which will be very very easy, which will be very very easy to do. Yeah. Okay, so देखिए students, so this is the universal set where there was 500 students. Now टू 250 स्टूडेंट्स, और क्या है, बायो है जहां पे कितना है, 200 स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग रूपाली, वेलकम। See, we are trying to get answer of one question. I'm showing you another method. Join our Telegram group, students. Join our Telegram groups. You will get the whole notes. You will get the whole note there. आपको PDF मिल जाएगा, जो भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, you will get the whole PDF there. Okay? So please join in our Telegram group. Supporting team, please mention our Telegram group का जो ID है, टेलीग्राम ग्रुप का जो आपका जो लिंक है, प्लीज प्रोवाइड देम। ओके, तो यू स्टूडेंट सी 500 इज द टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे मैथ का है 250 मेनी और बायो का है 200 मेनी। नाउ इस वाले जो पोर्शन होगा, दैट मींस दोज हु आर नॉट बायोलॉजी एंड नॉट मैथमेटिक्स,
इस वाले पे जो पोर्शन है यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, वहां पे क्वेश्चन में मेंशन था देयर आर 100 स्टूडेंट्स देयर। इस पोर्शन पे कितना स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स आर देयर, जिसके पास बायो भी नहीं है, मैथ भी नहीं है। अब जो मैं करने जा रहा हूं, दिस इज बाई एक्स। तो आप में से जिनको एक्स अच्छा लगता है, एक्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूज दिस मेथड, बिकॉज आई हैव सीन फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑल्सो many students are frightened of x. I don't know why, but from grade 6 that's why many of the students got frightened in mathematics. ठीक है ना, तो x से डरने का नहीं है। तो x से कैसे सॉल्व करते हैं, आई एम शोइंग यू, दिस इज अनदर टाइप। तो देखिए, तो लेट्स टेक दिस इंक। सो व्हाट अबाउट दिस पोर्शन स्टूडेंट, देखिए दिस पोर्शन 3 पोर्शन है, दिस इज वन ऑफ द पोर्शन, this one is another portion, and this one is another portion. क्या निकलना होगा, इस बीच वाले जो रेड पोर्शन है वहां पे कितना स्टूडेंट्स है, से एक स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस बीच वाले पोर्शन, मतलब बायो और मैथ दोनों ही है, ऐसा एक स्टूडेंट्स है, से ऐसा एक स्टूडेंट्स है। तो सिर्फ मैथ वाले कितने स्टूडेंट हो गए, सिर्फ मैथ, तो ओनली मैथ और सिर्फ मैथ वाले कितने स्टूडेंट होंगे, 250 इज द टोटल नंबर एंड दिस स्मॉल पोर्शन इज एक्स। तो इस ब्लू रीजन पे कितने स्टूडेंट्स होंगे, प्लीज लेट मी नो, बताइए कमेंट सेक्शन में कि ब्लू वाला जो सेक्शन है यहाँ पे कितना स्टूडेंट्स होगा, यहाँ पे कितना स्टूडेंट्स होगा, बताइए। ब्लू वाले रीजन पे, द बीच वाला रीजन, there are x many people and total is 250, so how many will be there in this blue region, बता सकते हो आप, how many students will be there in this blue region, please let me know students। 250 minus x, शीतल you cannot say directly 200, देखिए we need to find the answer, हम डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं। थैंक यू स्वाति, फैंटास्टिक, 250 minus x, रूपाली you people are telling the exact answer, we are doing this to find the answer, x का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा आपको, 250 minus x, फैंटास्टिक। तो 250 minus x यहाँ पे है, कहां पे है, इस वाले पोर्शंस पे। वैसे ही बायो पे कितना है, इस येलो पोर्शन पे कितना है, लेट मी चूज द येलो इंक। अब बताइए जो येलो पोर्शन है वहां पे कितना स्टूडेंट्स है, द रेड सर्कल कंटेन्स द बायोलॉजी स्टूडेंट्स व्हिच इज टोटली 200। ना उसमें से अगर बीच वाला पोर्शन को आप ले लोगे तो कितना होगा, आप अगर बीच वाले पोर्शंस को ले लेंगे तो कितना होगा, इसमें येलो पोर्शंस में बायो का स्टूडेंट्स का नंबर 200 minus x, फैंटास्टिक। तो देखिए, नाउ इफ यू विल जस्ट 200 minus x, 200 minus x, थैंक यू रूपाली, थैंक यू शीतल, थैंक यू स्वाति, एवरीबॉडी। नाउ यू सी, इसको ऐड करना है इससे और इसको ऐड करना है इससे, क्यों, अगर इफ यू आर गोना ऐड 250 minus x प्लस दिस x प्लस 200 minus x तो क्या हो जाएगा, let me write this x in the same line, तो 200 minus x plus x and 200 minus x, इसको अगर आप ऐड करोगे 250 minus x plus x and 200 minus x, तो you will get actually the students of math and biology without any mistake. This is the actual number without any mistake. You should count tick in that manner. पहले आपको लेफ्ट वाले रीजन को काउंट करना पड़ेगा, that is only math वाला स्टूडेंट्स, फिर आपको बीच में आना पड़ेगा जो कॉमन है, और फिर आपको बायो में जाना पड़ेगा जो ओनली बायो वाला स्टूडेंट्स है। क्यों, इसमें से एक मिस्टेक नहीं होगा, क्या था वो मिस्टेक, कि बीच वाला जो रीजन है स्टूडेंट उसको दोनों बार हम काउंट किए थे, so that mistake will not happen again. So what we should do, we should think of them separately, sector wise, जैसे पहले जो डिस्क्रिप्शन दिए थे हम उसमें हम सीखे थे, वैसे ही you need to add them up now.
तो 250 माइनस एक्स प्लस एक्स एंड 200 माइनस एक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? माइनस एक्स और एक्स को कर दीजिए कैंसिल। 250 और 200 कितना हो गया? 450 माइनस एक्स, यहाँ पे एक ही है, तो 450 माइनस एक्स जो है that will be the exact number of students मैथ एंड बायो। तो मैथ एंड बायो में है 450 माइनस एक्स, और बाहर कितने हैं? बाहर है 100। मैथ और बायो में है 450 माइनस एक्स, बाहर कितने हैं स्टूडेंट्स? बाहर पे जो है वो है 100। तो इसके साथ अगर 100 को आप जुड़ोगे क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट्स? ये 500 स्टूडेंट्स। 450 माइनस एक्स के साथ अगर आप 100 को जोड़ोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज 500। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आइडिया? बताइए, कमेंट पे बोलिए मुझे कि यू गॉट इट और नॉट। कमेंट पे बोलिए यू गॉट इट और नॉट। यहां पे हमने काउंट किया मैथ और बायो को मिलाकर एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? मैथ और बायो को मिलाकर एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट है 450 माइनस एक्स, और बाहर पे है 100 स्टूडेंट्स। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव 450 माइनस एक्स प्लस 100 दैट विल बी 550 माइनस एक्स। इसका वैल्यू हो जाएगा 500। तो मतलब 550 x को उस साइड पे ले जाइए तो x विल बी 550 minus 500 which is eventually 50. Got it, sir? Rupali, very good. Shraddha, Swati, Sheetal, Rupali, thank you so much. Okay, so you see the answer will be 50. So two portions are there, two kind of perspective is there. One is आप इंटेलिजेंस को काम पे लगाइए, और हम लोग ने जो किया है यहाँ पे वैसा कीजिए। देखिए यहाँ पे जो किया है दैट इज एनालिटिकल आइडिया। कोई कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक छोटा सा चीट यूज किए हो, राइट? और क्यों चीट क्या था? चीट आपको करना पड़ेगा कि गलती से सही आंसर कैसे लाना पड़ेगा। Whoever has you just got this view, I hope it was clear to you. Now उसके बाद जो आया है दिस इज द सेकेंड पोर्शन, दिस इज एनालिटिकल, जिसमें कंसेप्ट का बारे में पता चलता है। कंसेप्ट क्या है कि बीच वाला जो पोर्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो मिस्टेक करता है, बीच वाला पोर्शन को दोनों बार काउंट करके गलती से गलत आंसर निकालते हैं। Manjari, without drawing can I solve this type of math? Manjari, if you try to solve this without drawing, I hope it will be difficult for you. You try and let me know. If you will try to do this by without drawing, this first method will work. You don't need the drawing for the first method, क्योंकि first method का concept बहुत easy था कि मैथ और बायो को मिलाकर 450 आ रहा है, लेकिन आपको ड्राइंग का सेंस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ड्राइंग का सेंस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सेकेंड मेथड के लिए आपको तो ड्राइंग लगेगा ही लगेगा। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। तो देखिए दिस इज द टाइप 2 पैटर्न। टाइप 2 वाला क्वेश्चन जो बहुत आते हैं, टाइप 2 वाला क्वेश्चन जो बहुत आते हैं, इस क्वेश्चंस में क्या होता है? यू नीड टू टेल द रिलेशनशिप अमंग 2 or 3 things. Swati is saying using probability formula. See, Swati, the thing is that probability, what do you find? You don't find cardinality in the probability. You do have the union and intersection formula. That is not the formula for probability. That is formula for cardinality. Number of A union B or number of A intersection B will be equal n of A plus B, n of A plus n of B minus n of A union B। वो वाला जो फॉर्मूला है आप बोल रहे हो, उसके हेल्प से अगर आप करोगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एप्टीट्यूड वाला जो क्वेश्चंस होता है स्वाति, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल if you normally if you know the formula that is okay, but there are so many students from all the streams. देखिए पहले तो एप्टीट्यूड उनको पकड़ना पड़ता है जो आर्ट्स का स्टूडेंट भी होता है, और CSI नेट में बायो साइंस का स्टूडेंट्स होता है, बहुत सारा स्टूडेंट्स होता है, केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स होता है, जिनके बहुत दिनों से मैथ्स का टच नहीं रहता है, राइट?
तो बहुत इजी तरीका से कैसे हम कर सकते हैं, दैट विल बी आवर मोटिव इन दिस एप्टीट्यूड सेशन, ठीक है ना। मैथमेटिक्स वाला जो अप्रोच है दैट इज फैंटास्टिक, वी डू नो सिंस वी आर स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं है उनको फिर से याद करना पड़ेगा 11-12 का जो मैथ्स था वो चीज है। एक बार सोचिए, अगर मैथ्स वाला जो स्टूडेंट्स है उसको अगर कोई बोलेगा कि आप प्लीज केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद कीजिए, it will be difficult for us, right? तो इसीलिए throughout the session our represent will be such which will be very easy for all kind of students. Okay, स्वाति, I hope you got this idea. चलते हैं इस पोर्शन पे। देखिए, दिस इज अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आता है सेट में, दोनों टाइप का ही क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन, दिस वन। ओके, एंड आई विल डिस्कस अबाउट द यूनियन इंटरसेक्शन वाला चीजें, बिकॉज गेट में भी बहुत सारा क्वेश्चंस वहां से आता है। स्वाति जो फॉर्मूला के बारे में बात कर रहा है, यस, द थिंग इज दैट, बट ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस अबाउट दोस आइडियाज आल्सो टुडे। ओके, तो देखिए ये क्या है, वीक, मंथ और डे। वीक, मंथ और डे के बीच में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वीक, मंथ एंड डे? बताइए। इस जो पिक्चर है, इस पिक्चर से क्या आप डिनोट कर सकते हो वीक, मंथ एंड डे को? कैन यू डिनोट वीक, मंथ एंड डे यूजिंग दिस पिक्चर? वेरी गुड। तो यू सी यहाँ पे क्या है, मंथ जो है हमको पता है कि बहुत सारा दिनों से एक मंथ होता है, और उसके पहले बहुत सारा दिनों से, 7 दिनों से एक वीक होता है, और बहुत वीकों से, 4 वीक से एक मंथ होता है। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, मंथ इज द बिगर सर्कल, उसके अंदर आ गया वीक, और उसके अंदर आ गया डे। क्यों? क्योंकि हर एक, वेरी गुड, मंथ कंटेन वीक, वीक कंटेन डे। बहुत अच्छा रूपाली। Swati is saying every day comes under week and week comes under month. I am uncertified. Welcome. Month is a set and week is a subset of month. That is fantastic. You are using such languages, but I am not using this because of that reason. So many students are there. So you see, week is a part of month, like the way Rupali has said, Swati has said. That is fantastic. Month contain week and week contain day. I hope you got this idea. Let's go to the next slide. So this is the thing, animals, cat and dog. Animals, cat and dog. You see how I have represented them. Animals, this is animal kingdom. उसमें बहुत सारा different animals है। उसमें से छोटा वाला जो yellow circle है, that represent only dog. Okay students, that represent only dog, and that particular blue circle it represent cat. और देखिए उन दोनों का डिफरेंस देखिए, अलग है। क्यों? क्योंकि कैट और डॉग के बीच में कोई कॉमन नहीं आ सकता। एनिमल्स ईदर कैट और डॉग, एनिमल्स नॉट ईदर कैट और डॉग। So many animals are there, Rupali. That's why those places are empty. Those places are empty because so many animals are there. If it will be either cat or either dog, that will be a 50-50 picture. That will be a 50-50 picture. Cat and dog comes under animals, and this is a part of animals, so we have represented like this. What about this? Mars, Earth and Jupiter. Mars, Earth and Jupiter. देखिए students, I hope you can see it. This blue circle is Earth, and this one is Jupiter, and this is Mars. तो यहाँ पे जो तीनों है, तीनों planets है, देखिए, या प्लैनेट्स, तो उसमें क्या है, पिक्चर जो है उसका मीनिंग क्या है, आई एम अनसर्टिफाइड। यहाँ पे क्या करना होता है, जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है, यहाँ पे चारों ऑप्शंस होगा स्टूडेंट्स, उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि सही पिक्चर कौन सा है। तो आई एम शोइंग यू द पिक्चर, you need to tell me what is the meaning of that. Rupali, fantastic. They are separate planets, they have no relationship between them, so they are separate planets, so we are describing them differently. I hope you got this. Great. They are separate planets. That is the updated answer. Now tell me, which one is the answer? बताइए. Question number, this one. Which of the following diagram indicates the best relation between travelers, train and bus? बोलिए.
Which option is correct? पिक्चर क्लियर है या नहीं है? लेट मी नो द पिक्चर इज क्लियर टू यू और नॉट. Okay, you got the answer also. Fantastic. Let's see. Is that the correct one or not? Everybody, 2% said D. Take your time, no hurry. I am uncertified. Shushma, Swati. Traveler can travel by either bus or train. D. Fantastic. Everybody got the answer, but we need to do the analysis. देखिए, travelers जो होता है, उनमें से कोई ट्रेन में जाएगा, कोई बस में जाएगा. ऐसा भी हो सकता है कोई दूसरा चीजों पे ट्रेवल कर रहा है, लाइक साइकिल. somebody is traveling on the cycle or somebody is a paddlers, you know, so many options are there. So the thing is that you see that here A B C D, A वाला जो ऑप्शन है एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है और तो अलग सा है, उसका कुछ मीनिंग ही निकल नहीं रहा है. क्यों? देखिए, इसका मतलब है कि एक सर्कल एक का पार्ट होगा और जो तीसरा सर्कल है उसके साथ दोनों सर्कल का कोई संबंध नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता. इफ यू टेक ट्रैवलर, आउट ऑफ देम somebody is traveling in train, so the other thing, this one you are thinking about bus, that means you are saying nobody is going bus. Swati is saying C. So this is also not possible. ट्रेन, बस और ट्रैवलर के बीच में कोई संबंध नहीं है. दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. संभावी, हाउ यू आर गेटिंग ट्रू? हाउ यू आर गेटिंग बी? ट्रैवलर जो है ट्रेन और बसों में ट्रैवल करता है. ट्रैवलर के साथ ट्रेन और बस का तो संबंध है, रिलेशनशिप है. तो व्हाई वी शुड मार्क बी? थिंक अबाउट इट शंभवी एंड लेट अस नो एंड वेलकम शंभवी. व्हाट अबाउट सी? सी में क्या है? देखिए, सी में जो है तीनों सर्कल्स, वी नो द सिंबल ऑफ ऑडी. ऑडी का जो गाड़ी होता है उसका सिंबल ऐसा होता है, या फिर ओलंपिक में भी हम देखे हैं, डिफरेंट होता है वहां पे थोड़ा सा. तीनों सर्कल्स है, उसके बीचों में कुछ कॉमन पोर्शंस है. अब देखिए, अगर इफ यू विल टेक द मिडिल पोर्शन, इफ यू विल टेक द मिडिल पोर्शन एज द ट्रैवलर, if you will take this portion as bus and if you will take this portion as train, so this can be one of the option. I am not telling you. Rupali said C, Swati said C. Very good. So many people got D. देखिए कितना easy है Venn diagram, लेकिन wrong answer आया है. The space in option D indicates the traveler can travel with other modes like cycle or plane. Okay, I am uncertified. Let me tell you the thing. और इसमें क्या है, I am uncertified ने जो बोला, the bigger circle can be traveler, उसके बीच में कोई जाता है बस से, कोई जाता है ट्रेन से. अब कौन सा स्टार्ट, कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. रूपाली saying yes, the traveler is traveling by train or bus. But रूपाली कौन सा सही है, सी और डी? Let me see. Rupali got C, Shambhavi got not Shambhavi, Swati got C, and so many others got D. So which one is correct? Tell me confidently, Swati. Everybody, tell me confidently, C or D? C or D? Which one is correct? Very good, Rupali. I like your confidence. You see, I am uncertified. अब देखिए जरा, यहाँ पे ट्रेन और बस को अगर हम ट्रैवलर के बीच में डाल देंगे, इसका मतलब है yes, you are with D, but eventually, sorry for that, option C is correct. क्यों? देखिए मैं बोल रहा हूं, D पे जो है ट्रेन और बस में जो जा रहा है, हर कोई ट्रैवलर का मीनिंग वो नहीं रहा यहाँ पे. आई नो कहाँ पे आपको मिस्टेक आ गया कि ट्रैवलर के बीच में हम सोच रहे हैं कि हर एक डेली पैसेंजर भी ट्रैवलर से. नो, वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस. वी आर थिंकिंग अबाउट ट्रैवलर who are there for a tour or travel. वो वाला जो सेंस है उसको we are using. So you see students, अगर ट्रैवलर को हम एक बिग सेट समझ के ऐसा लेंगे तो we are telling you that B और C, मतलब बस और ट्रेन में सिर्फ ट्रैवलर जो होता है वो ही जा रहा है. जो ट्रैवलर होता है वो ही जा रहा है, वैसा कोई नहीं है. जो पैसेंजर्स होता है उसमें से कोई जाता है ट्रैवल के लिए और कोई जाता है, वैसे तो ट्रैवल जो वर्ड है, yes,
ट्रैवल जो वर्ड्स है उसको हम गलत तरीका से यूज कर रहे हैं, इसीलिए समझने में गलती हो रहा है। आई एम अनसर्टिफाइड, देखिए इस वाला जो रीजनिंग है इसमें ट्रैवलर का सिर्फ मीनिंग है जो ट्रैवल करने के लिए या फिर टूर के लिए निकले हैं। अब देखिए सी वाला जो ऑप्शन है, द आंसर दिस वन इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और बहुत सारा स्टूडेंट ने डी आंसर किया था लेकिन उसका गलत हुआ था। एग्जामिनर्स का दिमाग का सोच को आपको समझना पड़ेगा। द ट्रैवलर शेयर इज दिस, देन फ्यू ऑफ द ट्रैवलर कैन चूज। यहाँ पे देखिए जो मिडिल वाला पोर्शन है वहां पे जो है फ्यू ऑफ द ट्रैवलर्स आर देयर, दे आर नॉट चूजिंग ट्रेन और बस। यहाँ पे जो बस है उसमें से कोई होगा ट्रैवलर और कोई होगा डिफरेंट। हो सकता है कोई सब्जी के लिए जा रहा है, सब्जी मार्केट में जा रहा है, हो सकता है कोई डेली पैसेंजर से, बहुत सारा रीजन होता है, हो सकता है कोई स्कूल जा रहा है, स्टूडेंट्स है। और यहाँ पे कौन है, ट्रेन, ट्रेन में कोई होगा ट्रैवलर, और जो उसके अलावा जो होगा डिफरेंट से जो पीपल होगा, that people will be the other people, the daily passengers will be there, the courier service people will be there, so many other section will be there. Okay sir, tell again why not D। देखिए मंजरी, हमारे यहाँ पे जो समझने में गलती होता है, एंड दिस इज वेरी कॉमन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को होगा, ट्रैवलर्स इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इफ यू थिंक अबाउट ट्रैवलर्स, जो भी ट्रेन बस पैदल जा रहा है या फिर साइकिलों में जा रहा है, एवरीबडी इज ए ट्रैवलर, देन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ ट्रैवलर। ट्रैवलर का मीनिंग यहाँ पे है जो टूर करने जा रहा है या फिर ट्रैवल करने जा रहा है। ओके, तो ट्रैवलर जो होगा, दे विल नॉट कवर द होल सेक्शन। डेली पैसेंजर जो है कुछ भी काम करने के लिए जा रहा है, वी आर मेकिंग देम इन ए डिफरेंट सेक्शन। तो डी पे क्या है, ट्रेन और बस जो है वो पूरा का पूरा ट्रैवलर के अंदर पे है। मतलब वी आर एज्यूमिंग दैट ट्रेन और बस पे हर कोई ट्रैवलर है, ट्रेन और बस पे हर कोई ट्रैवलर है। इस कंसेप्शन से दिस ऑप्शन इज गलत एंड दिस ऑप्शन इज सही, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी पैसेंजर्स होगा बस में जो ट्रैवलर नहीं होगा, वो इस पिक्चर से सही दिखता है। बहुत सारा पैसेंजर्स होगा ट्रेन पे जो ट्रैवलर नहीं होगा। दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस पिक्चर बट नॉट दिस पिक्चर, दैट्स व्हाई आई चूज दिस क्वेश्चन। देखिए PYQ में आए थे, आंसर की में सी ही है, एंड द रीजन इज दिस। ट्रैवलर का मीनिंग नॉट दैट एवरीबडी इज यूजिंग बस, ट्रेन, साइकिल। सोचिए जरा, आप घर से बाहर जा रहे हो, आई एम अनसर्टिफाइड, आई कैनॉट सी यू, आप बताइए आर यू कन्विंस्ड विद दिस, आर यू कन्विंस्ड विद दिस और नॉट। आप सोचिए, सपोज आप पैदल घर से बाहर जेरोक्स या फिर फोटोकॉपी, परफेक्टली बोलेंगे तो फोटोकॉपी करने के लिए आप 5 मिनट्स वॉक पे जा रहे हो, आर यू ए ट्रैवलर? वेरी गुड, आर यू ए ट्रैवलर? आई एम अनसर्टिफाइड, बताइए मुझे, यू आर गोइंग फॉर टेकिंग फोटोकॉपी ऑफ योर एडमिट कार्ड? यस सर, आई एम कन्विंस्ड। तो देखिए हर कोई ट्रैवलर नहीं होता है, तो सोच वही पे है, हमको वर्ड का मीनिंग समझ पे गलत आता है तो हमको आंसर भी गलत आ जाता है। लेकिन अगर देखोगे आप आंसर की में, तब देखना कि आपका आंसर कुछ दूसरा ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट देखिए, दिस इज द क्वेश्चन, व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर, बताइए। Which one will be the correct answer? Rupali said the option is D. Rupali said the option is D. This is a very easy question. Shushma said option is D. Swati said
ऑप्शन इज डी। तो देखिए सर क्लियर दिख नहीं रहा, दिस इज द थिंग, लेट मी सी। बहुत सारे को दिख रहा है, रुतिका शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। वेरी गुड। तो देखिए इसमें क्या है, दिस डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी। जो क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी खेल रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको देखना पड़ेगा इनमें से स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल द 3 गेम्स। आपको देखना पड़ेगा इनमें से, वेरी गुड रूपाली, तो इनमें से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी पोर्शन वो है। देखिए मैंने जो टाइप 1 वाला पिक्चर आपको बोला था वो कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टोटली दिस पर्टिकुलर टाइप। टाइप 2 का जो, टाइप 1 का जो टाइप था, मैंने बोला था आपको कि हर पोर्शन का मीनिंग क्या होता है। किरणजीत कौर, मुझे भी क्लियर नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, स्लाइड में कोई भी व्हाइट प्लेसेस होता है स्टूडेंट्स, तो अगर कनेक्शन अच्छा नहीं होता या फिर कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सही नहीं दिखता है, पता है हमको। तो लेकिन देखिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, दिस बॉक्स इज सेइंग दैट कबड्डी प्लेयर्स आर रिसाइडिंग हियर, दिस बॉक्स इज सेइंग क्रिकेट प्लेयर्स आर रिसाइडिंग हियर, दिस बॉक्स इज सेइंग फुटबॉल प्लेयर्स आर रिसाइडिंग हियर। और इन डायग्राम से आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा आंसर है जो रिप्रेजेंट करता है ऑल द 3 गेम्स, ऑल द 3 गेम्स स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है P प्लस Q प्लस R। P पे कौन है, फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं, नॉट बच्चे, प्लेयर्स है। Q में कौन है, जो फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं, ओनली फुटबॉल और कबड्डी। और R में क्या है स्टूडेंट, जो ओनली कबड्डी खेलते हैं। देखिए उसमें वो वाले प्लेयर्स नहीं है जो क्रिकेट भी खेलते हैं। तो वैसे ही दिस इज नॉट ट्रू। V प्लस T, V में कौन है, जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही खेलते हैं। T में कौन है, जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेलते हैं। लेकिन जो बंदा यहाँ पे फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट तीनों ही खेलते हैं वो नहीं है। क्यों, क्योंकि जो फुटबॉल खेल रहा है वो कबड्डी नहीं खेल रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ट्रू। अगेन S प्लस T प्लस B। Yes, Rupali, the thing is that quality is purely good. This is not with quality. This is about the lights. Sometimes it happens due to the internet quality or something about the slide. Okay. So of course I'll remember this from next time. But the thing is that option C is S plus T plus V, which is saying that S is this middle portion and T is this portion एंड V इज दिस पोर्शन। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, एस में जो है वो कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों ही खेल रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन T और V में जो है, जो प्लेयर्स है, वो तीनों ही नहीं खेल रहा है, वो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी। ओके, so the thing is that you see the this portion, the small s portion is the only portion where this small portion is the only portion where you can get all the people, all the players who are playing football, cricket and kabaddi, who are playing kabaddi, football and cricket. Okay, so the only option will be D. That was a very easy questions. I'm not getting your comment, Swati. Please let me tell us. I'll come to this portion afterwards. First, let's solve few of the question. जल्दी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, बताइए what will be the answers. Can you see it? आ रहा है आपको, आप देख सकते हो? This question is from 2019 of one examination. Option is C, they are saying.
So Rupali, Swati got A, Kiranjit got C, Rupali got C, and Shushma C again. Great. So the thing is that everybody is seeing C. Let us see which one is the correct. Boys, students and girls. तो देखिए boys, students और girls. Fantastic. तो देखिए क्या है. Basically you need to understand the relationship among their students. में कितना section होता है? तीनों sections होता है. One may be boys, other may be girls और may be third gender. तो तीनों section होता है students पे. तो इन तीनों section को consider करके यहाँ पे देखिए जो C वाला options है, इस totality को अगर हम students मानते हैं, if this totality is students, so the minimum portion, the smallest circle, they are nothing but one of them are what? One of them are boys and other is girls. No, this is not the correct thing. Think again, think again. Boys, students and girls. Boys, students and girls. I listened to you and I was thinking, but no. Think again. Think again. I am giving you time. Think again. Everybody said C. So this is students. This is students. If this is students and this is boy and this is girls, so that means you are trying to say that boys. Yes, that means you are trying to say that all the boys are students, all the girls are students. No, think again. With your option, I was thinking that you people are right. I had a great confidence in you, but I can see many of you are getting the wrong answer. Why so? I was believing in you, but you are not correct. देखिए जरा यहाँ पे हर कोई गर्ल्स और हर कोई बॉयज को आप बोल रहे हो दे आर स्टूडेंट्स. हाउ इट कैन बी? बहुत सारा स्टूडेंट्स, बहुत सारा गर्ल्स है या फिर बॉय है, बहुत सारा एरिया पे जो अभी भी स्टूडेंट नहीं है. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. लिटरेसी बहुत ज्यादा है लेकिन सब तो नहीं है ना. तो दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू. ये तो नहीं भी हो सकता. एक के अंदर एक के अंदर एक, मतलब पार्ट नहीं हो सकता. ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि पूरा चीज का अंदर दो स्मॉल सर्कल्स है, उसमें भी कॉमन है. गर्ल्स और बॉय के बीच में कोई कॉमन नहीं हो सकता. कैसे आप बोल रहे हो डी मंजरी? हाउ कैन यू से इट इज डी? देखिए मतलब आप सोच रहे हो फिर से कि जो स्टूडेंट्स है उसके अंदर बॉयज और गर्ल्स होगा. बॉयज और गर्ल्स जो होता है उसके अंदर कोई होता है जो स्टूडेंट्स नहीं होता है. तो देखिए इफ दिस इज स्टूडेंट्स, if this is students and this one is boy and this one is girl, so this is the perfect picture actually. So this is the perfect picture actually. Rupali, I am telling you, you देखिए the A is this, these are student, देखिए बीच वाला जो सर्कल है, बीच वाला ये स्वाति यू आर राइट. बीच वाला जो सर्कल है संभावी, किरणजीत इज ऑल्सो राइट. बीच वाला जो सर्कल है दैट इज स्टूडेंट्स. मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स में कोई जो है वो गर्ल्स है, कोई जो है वो बॉयज है, और बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कौन है? द थर्ड जेंडर. ओके, द थर्ड जेंडर पीपल आर देयर. So now this portion contains the boys, the girls as well as the third gender as students. यहाँ पे जो गर्ल्स है स्टूडेंट्स, उन गर्ल्स पे जो है ये वाले पोर्शन पे वो स्टूडेंट्स है, लेकिन यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स नहीं है. सिमिलरली बॉयज जो है यहाँ पे इस वाले पोर्शन में जो है बॉयज वो है स्टूडेंट्स, लेकिन इस वाले पोर्शन में जो है दे आर नॉट स्टूडेंट्स. वेरी गुड, यू गॉट इट. कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? क्लियर है सबके लिए? क्लियर है? तो देखिए हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द रॉन्ग आंसर. मैं आई नीड टू टेल यू दैट ओनली एग्जाम के टाइम में भी ऐसा ही रॉन्ग आंसर आते हैं ड्यू टू दिस लिटिल फोकस. थोड़ा सा
और फोकस कीजिए, टाइम दीजिए। दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? What will be the answer of this question? This is also from 2019 examination. Question is not clear. Please increase the video quality. Please increase the video quality. Set it to the high quality. वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कीजिए थोड़ा सा। आई एम चेकिंग फ्रॉम माई फोन बट इट इज क्लियर। देखिए, आई एम टेलिंग यू अगेन, अ रिपोर्ट रिगार्डिंग, प्लीज लिसन टू इट, करणजीत, रुतिका, आई एम टेलिंग इट फॉर यू। A report regarding certain examination is given below. Total number of candidates appeared is 1000. The number of male candidate is 550. The number of candidate passed 700. Then the number of successful male candidates will lie between the limits. एक एग्जामिनेशन है स्टूडेंट्स, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर किया है 1000. ओके, उसमें से मेल कैंडिडेट्स 550 is the male candidates. Number of candidate passed, say this is P, that is 700. तो नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कितना होगा, किसके बीच में होगा? नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स किसके बीच में लाई करेगा? यू कैनॉट से द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। आपका क्वेश्चन में पूछा है उन लोगों ने कि कौन सा रेंज में रह सकता है। somebody is saying B, somebody is saying C, but from this time I'll not go with your answer, although I do believe yourself, but first I'll check it, then I'll tell you. Everybody is saying B, but we do not know कि B ही होगा या फिर नहीं होगा। We do not know B ही होगा या फिर नहीं होगा। Let us see which one is the correct. 4 answer we got B, तो B का चांस तो ज्यादा है। बहुत अच्छा, B का चांस तो ज्यादा है। अब देखते हैं कि B होगा या नहीं होगा। स्टूडेंट्स, कैसा किया आपने सॉल्व? देखिए, तो टोटल नंबर्स कैंडिडेट्स इज 1000, द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स 550. ओके, लेट मी सॉल्व फ्रॉम दिस साइड. सर, आई एम राइट नाउ, आई नो इट. फैंटास्टिक, यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट. आई लाइक योर कॉन्फिडेंस. तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1000. लेट मी ड्रॉ अ बिग पिक्चर. So this is universal set. Prachi is saying B. Fantastic. So सबका B आया है. So this is again universal set. 1000 is the number of student there. उसमें से number of male candidates कितना है? Number of male candidates है 550. देखिए, द नंबर ऑफ पासिंग कैंडिडेट्स कितना है स्टूडेंट्स? $700. और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ट, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कितना है वो आपको निकालना पड़ेगा. तो हाउ टू सॉल्व दिस? स्टूडेंट, वी नो अबाउट नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स, सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स? यहाँ पे हम दोनों सेक्शन ही ले रहे हैं. तो नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट इज 550
otherwise this question cannot be solved if we consider the third genders. So इस क्वेश्चन पे क्या है, नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट्स 100 है, उसमें से कोई ही है मेल और कोई ही है फीमेल. तो यहां पे टोटल है 1000. सो फीमेल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1000 माइनस 50, 1000 माइनस 550 which is 450. So students, 450 will be the number of girls. Female. अब देखिए कैसे मेंटली इसको सॉल्व करेंगे हम. कुछ भी नहीं लगेगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है. डायरेक्टली आई विल सॉल्व दिस. तो देखिए क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ सक्सेसफुल मेल कैंडिडेट्स विल लाई बिटवीन द लिमिट्स. लिमिट का मतलब क्या होता है, मेल कैंडिडेट्स का जो नंबर होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है और इस टाइप में मिनिमम कितना हो सकता है. तो मैक्सिमम या मिनिमम. तो देखिए इन सब जो क्वेश्चंस होता है इनको सॉल्व करने के लिए दोनों ही निकालना जरूरी नहीं होता है. इफ यू कैन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी योर आंसर इज देयर. कैसे, देखिए 500 स्टूडेंट्स है जो मेल है, 550 स्टूडेंट्स है जो है मेल. टोटल कितना कैंडिडेट्स पास किया है स्टूडेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास इज 700. तो द बेस्ट पॉसिबिलिटीज कि मेल कैंडिडेट्स क्या है, क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल मेल कैंडिडेट्स का लिमिट क्या है. तो देखिए सक्सेसफुल मेल कैंडिडेट्स का जो लिमिट होगा उसका मैक्सिमम सबसे अच्छा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि हर कोई जो मेल कैंडिडेट्स है वो पास हो गया. ऑल द मेल कैंडिडेट्स हैज पास द एग्जामिनेशन. दैट कैन बी द मोस्ट द मोस्ट ब्राइटेस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द मेल कैंडिडेट्स, राइट. सो टोटल नंबर कितना है मेल कैंडिडेट्स का, 550. अगर हर कोई पास हो जाएगा तो उसका अपर लिमिट क्या आ जाएगा, 550. अपर लिमिट आ जाएगा 550. देखिए जरा यहाँ पे all these 4 options पे only one option contains 550 as upper limit, so B is the answer. Lower limit का कोई जरूरत ही नहीं है. You no need to do the whole math. You no need to know the whole math. 500 students है, total 700 student pass कर रहा है. The beautiful possibility is that all 500 student has passed the examination. So only one option is correct, which is 550. Okay? So you got it or not? देखिए बहुत इजी तरीका से आया है या नहीं आया है. वेरी गुड. So the maximum limit will be 250 to 550. Fantastic. कॉमन सेंस से भी आ सकता है. मेल स्टूडेंट्स का नंबर है 550, टोटल नंबर है 700, तो 550 हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी. सिमिलरली यू कैन फाइंड इट द लोअर लिमिट. आपको अगर मैक्सिमम लिमिट नहीं चाहिए, ओनली लोअर लिमिट सब करना चाहते हो, तब भी आंसर आएगा. देखिए 450 फीमेल कैंडिडेट्स है, मोस्ट पॉसिबिलिटीज ऑल फीमेल कैंडिडेट पास कर जाए, फिर तो बचा कुचा जो रहेगा सीट उसमें ही मेल कैंडिडेट्स को चांस मिलेगा. तो टोटल फीमेल कैंडिडेट्स क्या है 450. तो सबसे कम मेल कैंडिडेट्स कब पास करेगा, जब ऑल द फीमेल पास द एग्जामिनेशन. टोटल है 700, उससे अगर 450 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी 250. तो देखिए जो बचा कुछ सीट्स है उसमें मेल कैंडिडेट आ जाएगा 250. तो लोअर लिमिट में भी एक ही ऑप्शन है 250, अदर्स आर नॉट 250. सो यू कैन चूज बाय मैक्सिमम लिमिट और लोअर लिमिट. आ गया, ऐसे किया आपने सॉल्व. हैव यू सॉल्व दिस लाइक दैट? Have you solved this like that? You got this method, students? Please बताइए in the comment section. Have you got this? So option B will be the correct option. Option B is the correct answer. Okay? चलिए, so these are the things. देखिए this is a live session, so we will not be able to solve so many questions, otherwise I can continue this class for so many hours. But the thing is that student, I need to tell you something which is another perspective of Venn diagram. देखिए कुछ जो questions हम लोग, I have chosen few of the questions
and I have showed you how we can get the wrong answer after knowing the concepts. तो क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा और इन चीजों में टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा और इन चीजों में टाइम देना पड़ेगा. So like the way you can use your common sense and get the answer differently. तो चलते हैं, देखिए कंसेप्ट है वेन डायग्राम का. Since this is a lecture series, so I'll tell you about that. The idea is union, intersection, वो वाले जो चीज होता है. We'll think about this idea and we'll solve one of the PYQ today based on that, and that will be the completion of this lecture for today. Okay, तो देखिए टाइप 1 और टाइप 2 कर चुके हैं हम. Swati Chapali sir, is that possible to change class timing? Because I have real analysis class of Manush sir on IFS IT Jam channel at 11 AM. Okay Swati, let us see that. But basically we have scheduled these classes at 11 AM. We do know that Manush sir is taking class, but the thing is that we have scheduled this in a particular time. We have other things. So let's see. I'll take your request that whatever you are telling us, we would like to think about this. Okay, we'll have a meeting about that. But anyway Swati, think about it. Union, intersection, difference, complement, those things I'll tell you in very short. तो देखिए क्या है, एंड उसके ऊपर एक PYQ करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स पे आए हैं. तो देखिए यूनियन क्या होता है. इफ दिस इज A एंड दिस इज B, तो दिस इज A यूनियन B. दिस होल रेड पोर्शन, देखिए दोनों सर्कल को मिलाकर जो पोर्शन आया है, दैट इज द आइडिया ऑफ A यूनियन B. सिमिलरली यहाँ पे देखिए दिस इज सर्कल A एंड दिस इज सर्कल B. उसके बीच में एक पोर्शन है जो दोनों में ही कॉमन है, जो दोनों में ही कॉमन है. Yeah, from today it is started. I do know about this. I have this information, Swati. So A intersection B. This is A intersection B. This is A intersection B. Swati, अगर आप लाइव पे नहीं आ पा रहे हो, you can get the lectures afterwards also. But we do like your presence. तो आप आओगे तो अच्छा लगेगा. So the thing is that Swati, you see, A intersection B is this portion, means which is common in A as well as which is common in B. Similarly, this is a very important concept. Say this is A and this is B. So A क्या है students? This is saying that this is the difference. और difference क्या है students? Difference is B वाला जो set है, this is the circle of B. उसमें से एक portion है जो A का है, जो A का है. So if I'll tell you what is B minus A, this is nothing but the difference. Difference between B और A. नंबर के बीच में difference तो हम पढ़े हैं. Now this is the difference between set. और उसको कैसे define कर सकते हैं हम student? देखिए B minus A representing the people who are there in B but not in A. मतलब B में जो थे वो A का पार्ट है, उसको हमको subtract करना पड़ेगा, उसको हमको subtract करना पड़ेगा student. तो दिस इज B डिफरेंस है, B सब्ट्रैक्शन A करके हम ऐसा लिखते हैं, मतलब B में से A का जो पोर्शन है उसको हम निकाल दिए. B में से, but I can't share my doubt to you sir if I see it later. Yeah, I know that. So you we see, let us see about the live schedule. We will talk about that. I'll talk about this issue. Okay, so let us see what we can do about it. तो देखिए जरा कि B minus A is the difference of set, जो B में है लेकिन A में नहीं है, मतलब जो B में है only B में है, they are residing here as B minus A. Let's go to the next slide. These are complements. So these be the A. So this is the universal set. This is the universal set. A के बाहर जो है देखिए A पे बाहर जो है एक्सेप्ट दिस सर्कल, A मतलब A वाला सर्कल, और इसके बाहर जो है दैट इज नथिंग बट A कंप्लीमेंट. इसको हम A के ऊपर ऐसा सुपरस्क्रिप्ट C करके लिखता है. So very good Swati, you are telling the set theoretic ideas, but we are not talking about B intersection A complement.
तो बहुत क्या हो जाएगा, आप डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हो, वी डू नो अबाउट दैट। तो देखिए दिस इज कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट? कंप्लीमेंट इज समथिंग व्हिच इज एक्सेप्ट दिस। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? ए को छोड़कर बाहर वाला जो पोर्शन है, ए को छोड़कर बाहर वाला जो पोर्शन है, दिस इज द आइडिया ऑफ इंटरसेक्शन। आई होप यू गॉट दिस आइडिया स्टूडेंट्स। तो दिस इज द कंप्लीमेंट। और लिखते हैं हम ए कंप्लीमेंट करके। ए कंप्लीमेंट का आइडिया, बी का आइडिया आपको मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी का आइडिया आपको मिल गया, एंड बी डिफरेंस ए का आइडिया भी मिल गया। दोस 4 डेफिनेशंस आर इनफ फॉर एप्टीट्यूड सेक्शन। एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए ये वाला आइडिया बहुत बढ़िया है और कुछ आपको जरूरत नहीं है। इट विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस यूजिंग ओनली दीज आइडियाज। हाउ टू सॉल्व दिस स्टूडेंट्स? This is a question for you. Solve this. This is a question for you. Please solve this. This is a question for you, students. Please solve this. Is that clear to you? आपको दिख रहा है? Can you see it? Can you see the slide properly? Can you see the slide properly? Can you see the slide properly? Is that clear to you, students? बताइए मुझे, स्लाइड क्लियर है आपके लिए? Very good. Thank you, Shraddha. Rutika is saying no. Rupali is saying yes. So देखिए, there must be a problem with the internet connection. Also from my phone, I can see sometimes when the connection is not good, it is not clear. And when the connection is very good, it is clear. तो दिस इज द लास्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ एक बार ही सेट में आया है। They have asked this question very minimum amount of times in set examination, but this is also from one of the set examination. What will be the answer? This is also from one of the set examination. तो ऐसा नहीं है कि set में एकदम ही नहीं पूछ रहा है। They are asking you the questions in the set also, and whatever we have discussed today, if you follow those things, those are enough for your set examination, and also for other examination, the knowledge is sufficient. You need to solve few of the PYQs. You need to solve all the PYQs, then you will be able to understand that those knowledge are sufficient. Rupali is saying B, Swati is saying B. All the 3 expression represent same set. Do not say that without drawing it. Without drawing the things, do not say that. I am drawing the picture for you. This is P. PQ and say R. So this is the picture, student. Now बताइए, अब बोलिए कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R क्या होगा? P intersection Q intersection R is which portion? P intersection Q union, P intersection R union, Q intersection R complement.
स्वाति यू हैव सॉल्व, बट कैसे आपको आ गया कि तीनों ही सेम है? स्टूडेंट्स, लेट मी मार्क दिस फॉर यू, और बताइए कौन सा होगा आंसर। ओके, तो यू सी P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इज दिस पोर्शन, सबको पता है। तो वी हैव मार्क देम विद द येलो कलर। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स टेक रेट P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q मतलब वी आर मार्किंग दिस विद दिस रेड कलर। तो P इंटरसेक्शन Q का मतलब क्या है? दिस पोर्शन, उसके साथ यूनियन है P इंटरसेक्शन R। P इंटरसेक्शन R क्या है? दिस पोर्शन, और उसके साथ Q इंटरसेक्शन R कंप्लीमेंट का यूनियन है। Q कौन सा है स्टूडेंट्स? Q, दिस इज Q, और Q इंटरसेक्शन R कंप्लीमेंट, उसमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? दिस पोर्शन। मतलब देखिए, R को छोड़कर अगर कंप्लीमेंट लेंगे आप, से दिस इज ए यूनिवर्सल सेट, तो R को छोड़कर बाहर का चीज उसके साथ इंटरसेक्शन पे है Q, तो आ जाएगा ओनली दिस सेक्शन स्टूडेंट। So whatever we have marked with red, this portion is Y. तो देखिए जरा, तो this red portion is Y, reducing all it to simple। बहुत टाइम लगेगा स्वाति, आप पिक्चर से कैसे कर सकते हो वो आपको सोचना पड़ेगा। स्वाति आपका आंसर क्या है? आई हैव सॉल्व इट इन फॉर्मूलाज, बट आपका आंसर क्या है वो बताइए। नाउ देखिए, रेड पोर्शन इज द सेकेंड वन विच इज y, एंड द येलो पोर्शन इज द फर्स्ट वन x। तो आपको और करने का जरूरत अब भी नहीं है, इसमें से ही आपको कुछ आंसर्स आएगा। क्या होगा आंसर्स? देखिए, नो टू एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट सेम सेट, ये तो हम नहीं बता सकते कि नो टू एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट सेम सेट या नहीं। All three expression represent same set, this will not happen। Why? Because red वाला और yellow वाला जो section है, they are different। So two things we have got which is x and y, and they are different student। So basically all three expression represent same set, it will not happen। Only x and z represent same set नहीं बोल सकते, y and z represent same set नहीं होगा। y and z, okay, we do not know about z, so we should know about z। फिर से हम कर सकते हैं। स्वाति, पिक्चर से बी नहीं आ रहा है, आपको कैसे बी आ गया? प्लीज देखिए, पिक्चर से बी नहीं आ रहा है, आपको कैसे बी आ गया? तो आपको जेड फाइंड करना होगा। जल्दी से मैं जेड बोल देता हूं आपको। क्यू यूनियन पी कंप्लीमेंट, दिस इज क्यू और पी कंप्लीमेंट। क्यू यूनियन पी कंप्लीमेंट मींस दिस पोर्शन, क्यू यूनियन पी कंप्लीमेंट मींस ए पोर्शन आ जाएगा प्लस बाहर वाला पोर्शन आएगा, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाहर वाला पोर्शन बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द रीजन हियर। तो दिस ब्लैक पोर्शन इज क्यू यूनियन पी कंप्लीमेंट इन दैट पिक्चर। उसके बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इंटरसेक्शन पी यूनियन आर। पी यूनियन आर क्या होता है? ए वाला पोर्शन होता है दिस पी प्लस दिस पी यूनियन आर का। अगर आप इंटरसेक्शन ले लोगे बच्चे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा? दैट विल बी दिस पोर्शन। ओके, पी यूनियन आर जो होता है, पी यूनियन आर के साथ आप उसका इंटरसेक्शन कर रहे हो, तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है? पी यूनियन क्यू के साथ इंटरसेक्शन। पी यूनियन कौन सा है? पी यूनियन क्यू इज दिस, Q union P complement was there। Oh, Q union P complement, we took it differently। Q union P complement will be this whole thing। Okay,
उसके साथ आर पी यूनियन आर का कंप्लीमेंट, तो दिस होल थिंग आ जाएगा, सॉरी स्टूडेंट, दिस होल थिंग आ जाएगा। उसके बाद क्या है, पी यूनियन क्यू का, पी यूनियन क्यू कौन सा है, पी यूनियन क्यू इज दिस, उसका इंटरसेक्शन, मतलब आई एम टेकिंग अनदर रिंग, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड, आई एम यूजिंग ग्रीन, सो दिस विल बी द थिंग। पी यूनियन आर जो होता है, पी यूनियन क्यू जो होता है, उसके साथ अगर इंटरसेक्शन करोगे आप ब्लैक पोर्शन का, सो दिस पोर्शन विल कम, दैट ग्रीन वन, तो वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर दिस एज ग्रीन। तो देखते हैं अब, तो क्या हो गया, उसके साथ P का इंटरसेक्शन, मतलब वो ही होगा, P का इंटरसेक्शन वो ही होगा। उसके बाद P कंप्लीमेंट यूनियन R स्टूडेंट, तो मतलब P कंप्लीमेंट यूनियन R, P कंप्लीमेंट P को छोड़कर बाहर का चीज यूनियन R, मतलब A वाला पोर्शन आ जाएगा, सॉरी, मतलब दिस पोर्शन विल कम, लेट इज वायलेट, दिस पोर्शन विल कम, और उनमें से इंटरसेक्शन लेने में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, लेट मी यूज द ग्रीन, दिस पोर्शन विल बी द ओनली थिंग, दिस पोर्शन विल बी द ओनली थिंग। आप घर से अच्छे से कीजिए, घर पे अच्छे से कीजिए, यू विल गेट इट दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब एक्स और जेड इज सेम पोर्शन, घर पे अच्छे से कीजिए, टेक योर टाइम, मैंने थोड़ा जल्दी बोला इस पोर्शन को, सो घर पे अच्छे से कीजिए, यू विल गेट ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब एक्स जो था पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर येलो वाला, और ग्रीन जो हुआ है जेड वाला, बोथ आर सेम स्टूडेंट, ओके, सो सी इज राइट, नॉट डी, डी इज इनकरेक्ट, वाई और जेड डिफरेंट है, वाई और जेड डिफरेंट है, सो आंसर इज सी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, all the best for your upcoming examination and have a great day. We need to sign off today, okay, already we are quite late, so all the best students and have a great day. So I'm ending the stream, see you there tomorrow. Tomorrow we will be there with statements and conclusions, only we will discuss the things of statements and conclusion, and we will solve few of the PYQ such that you will get the idea of your set examination. So thank you so much students and goodbye.